نافرمان یونا۔ آج ہم ایک نبی کے بارے میں، ایک اگامی واقعے کے بارے میں سنیں گے جس نے خداوند کی نافرمانی کی۔ خدا نے یونا سے کہا نینوا کو جا، وہ بہت گناہ گار ہیں، ان کے گناہ میرے تک پہنچے ہیں اور میں ان کو تباہ کرنے والا ہوں۔ جا ان کو اگاہ کر دے، میں ان کو تباہ کرنے والا ہوں۔ یونا نے سوچا اگر میں نے جا کے ان کو کہہ دیا خدا ان کو تباہ کرنے والا ہے تو وہ معافی مانگ لیں گے اور خدا ان کو تباہ نہیں کرے گا۔ نینوا کے لوگ بہت خراب ہیں، انہوں نے اسرائیل کو بہت ستایا تھا، بہت زیادتیاں کی تھیں، تو اگر میں ان کو نہ بتاؤں تو خدا تو انہیں تباہ کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ ایک جہاز پہ چلا گیا جو ترسیس کو جا رہا تھا، اور اس نے کہا میں جب دور چلا جاؤں گا تو خدا مجھے وہاں جانے کو نہیں کہے گا۔ لیکن خداوند کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا کام کس طرح کروانا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا طوفان بھیجا، سمندر پہ ایک طوفان بھیجا، اور وہ جہاز جس میں یونا بیٹھا تھا وہ ڈگمگانے لگا، اور ملاح پریشان ہو گئے کہ ہمارا جہاز تو ڈوب جائے گا، ہم کیا کریں۔ سب نے اپنے اپنے دیوتا سے دعا کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ یونا کے پاس گئے اور دیکھا کہ یونا سو رہا ہے۔ انہوں نے یونا کو اٹھایا اور کہا تجھے نہیں پتا اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے، اٹھ اپنے خدا سے دعا کر۔ اور یونا کہنے لگا میرا خدا وہ ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا، وہ ساری دنیا کا خداوند ہے۔ اس نے مجھے ایک کام پہ بھیجا تھا اور میں اس سے دور جا رہا ہوں اور میں اس کی بات نہیں ماننا چاہتا، اس لیے اس نے طوفان بھیجا ہے۔ ملا کہنے لگے ہم کیا کریں کہ یہ طوفان شانت ہو جائے۔ تو یونا کہنے لگا مجھے سمندر میں پھینک دو، میں تو ختم ہو جاؤں گا لیکن تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جہاز کو طوفان سے بچائیں، ان لہروں سے بچائیں، لیکن نہیں، کچھ نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے کہا خدا یہ گناہ ہمارے ذمہ نہ لگانا۔ انہوں نے یونا کو اٹھا کے سمندر پہ پھینک دیا، اور لیکن خداوند نے یونا سے اپنا کام کروانا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی مچھلی تیار کر رکھی تھی جس نے یونا کو نگل لیا، کھایا نہیں لیکن اس نے نگل لیا، اور یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہا۔ اس کے ارد گرد سارے یہ پیٹ میں جو مچھلی کے مادہ ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد تھا، گھاس پھوس تھی اور سانس لینا مشکل تھا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ مجھے خدا نے زندہ رکھا ہے، اس کے تیزابوں نے مجھے ڈیزالو نہیں کیا، مجھے ہضم نہیں کیا۔ تو اس نے خدا سے معافی مانگی اور کہا میں تیرا کام کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ 3 دن کے بعد مچھلی نے یونا کو اگل دیا اور یونا نینوا کو گیا۔ اس نے 3 دن کی راہ کو چلا اور یہ کہتا گیا نینوا کے لوگوں سنو، خدا اس شہر کو برباد کرنے والا ہے۔ نینوا کے لوگوں سنو، خدا اس شہر کو برباد کرنے والا ہے۔ نینوا کے لوگوں سنو، خدا اس شہر کو برباد کرنے والا ہے۔ لوگوں نے سنا، ان کے بادشاہ نے سنا، ان سب نے خدا سے معافی مانگی، سب نے ٹاٹ اوڑا، روزہ رکھا اور خدا سے معافی مانگی۔ اور نینوا نے انہیں کہا تھا خدا 40 دن بعد یہ اس سے برباد کر دے گا۔ تو
नैनवा शहर के बाहर जाके बैठ गया कि देखिए 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद होता है कि नहीं। 40 दिन गुजर गए, खुदा ने उसे बर्बाद नहीं किया, खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो नैनवा एक छप्पर के नीचे बैठा था ये देखने के लिए कि कब खुदा बर्बाद करता है, क्या होगा, क्या वो आग बरसाएगा, किस तरह करेगा। मैं ये नज़ारा देखना चाहता हूँ कि खुदा उन्हें किस तरह बर्बाद करता है। और जब वो इंतज़ार कर रहा था इस छप्पर के नीचे, खुदा ने एक बेल उगाई और उस वक्त बहुत धूप थी। वो बेल थोड़ी ही देर में उगी और उसने सारे उसके छप्पर को ढांक लिया और छाँव हो गई। नैनवा यूना बहुत खुश हुआ। उसने कहा ओ ये बहुत अच्छा है, मैं छाँव में बैठ के इंतज़ार करता हूँ और नैनवा को देखता हूँ। और क्या हुआ, अगले दिन एक कीड़ा आया और उसने वो बेल को खा लिया और अब फिर धूप उसके सिर पे। यूना बहुत नाराज़ हुआ, कहने लगा खुदा तूने क्या किया है, तूने इस बेल को भी तबाह कर दिया है। मैं गर्मी से बेताब हो रहा हूँ। तो खुदा ने कहा तू नाराज़ है, मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो तू क्यों नाराज़ है, तूने नैनवा को तबाह नहीं किया और इस बेल को तबाह कर दिया। खुदा ने कहा क्यों ना, इस शहर में 1,20,000 लोग रहते हैं और बहुत से मवेशी हैं, क्या तू चाहता है कि मैं उन्हें तबाह कर दूं? उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। लेकिन यूना बहुत नाखुश था, वो वहाँ से नाराज़ चला गया। वो खुदा का नबी था, उसका क्या काम था? उसका ये काम था कि जब उसने मुनादी की है कि खुदा बर्बाद करने वाला है और खुदा उन्होंने माफ़ कर दिया है, तो नैनवा शहर को जाए और उन्हें बताए कि खुदा कौन है, खुदा की इबादत कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए कि जिनसे खुदा नाखुश ना हो, कि अपने बुरे कामों से बाज आए। उसका काम था कि उन्हें खुदा के बारे में सिखाए, खुदा की परस्तिश करना सिखाए। उसने नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ अरसे के बाद, जब नैनवा के लोगों ने देखा कि खुदा ने उन्हें तबाह नहीं किया, तो वापस अपनी रूटीन पे आ गए। उन्होंने पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह करने शुरू किए और खुदा ने नैनवा को तबाह कर दिया। लेकिन अगर योना जाके उन्हें बताता कि खुदा कौन है और खुदा के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में बताता, तो वो बच सकते थे। अब देखिए खुदा हमें किसके पास भेज रहा है। खुदा चाहता है हम अपने ख़ानदान के लोगों के पास सबसे पहले जाएं, सबसे पहले खुद जानें खुदा है कौन। खुदा हम प्यार करने वाला खुदा है। उसने यीशु को भेजा, अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों की कुर्बानी दे, हमें माफ़ करे। उसने हमारे गुनाहों की कुर्बानी के बदले सलीब पे जान दी, गुनाहों के बदले गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए सलीब पे जान दी। और जब हम उस पर ईमान ले आते हैं और कहते हैं खुदावन तूने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया, हमें माफ़ कर दे, हमें अपने पाप रूह से भर, तो हम खुदा की बेटे बेटियां बन जाते हैं। और फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उसके पीछे पीछे चलें और उसके काम करें। तो आइए हम खुदा के पास चलें और उससे कहें खुदा यीशु हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तुम्हारा मुक्ति दाता है, निजात दहिंदा है। तेरे मार खाने से हम गुनाहों से रिहाई पाते हैं, खुदा की बेटे बेटियां बन जाते हैं। तो हमें माफ़ कर ताकि हम
खुदा की बेटे बेटियां बन जाए और हमें अपने पाक रूह से भर, ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सकें पाक रूह के ज़रिए, तेरे काम कर सकें। और फिर जब हमें खुदा भेजता है यूना की तरह, जाओ अपने ख़ानदान के पास जाओ, जाओ अपने पड़ोसियों के पास जाओ, अपने शहर में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, तो हम तैयार रहें, नाफरमानी ना करें, बल्कि उनको जाके बताएं कि खुदा ने एक तरीका ज़ाहिर किया है, एक ज़रिया भेजा है, अपने बेटे यीशु को भेजा है ताकि हमारे गुनाहों की कुर्बानी दे। आओ यीशु पे ईमान ले आओ, क्योंकि यीशु पे ईमान लाने से हम सारी गुनाहों से निजात पाते हैं। तो आइए हम खुदा के पास आएँ, उससे माफ़ी मांगिए, उससे निजात हासिल करें, और फिर जिस काम के लिए हमें भेजता है हम वो काम करें, नाफरमानी ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी दुनिया जो खुदा ने बनाई है, सारी दुनिया खुदा के पास आ जाए, ताकि सारी दुनिया के लोग खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं, और ताकि सारे हम जब इस दुनिया को छोड़ दें, जब हमारा आखिरी दिन यहाँ आए, जब हम ख़त्म हो जाएं, तो हम अपनी हयाती, अपनी नई ज़िंदगी आसमान में शुरू करें, हमेशा से हमेशा तक के लिए। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरे यीशु नाम में तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, बहुत रहीम खुदा है। तूने एक मुक्ति का ज़रिया भेजा, हमारी निजात के लिए यीशु को भेजा, ताकि उसके मार खाने से, उसके सलीब पे जान देने से हम निजात पाएँ, उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। और खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भर, ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सकें, तेरा पाक रूह हमें लीड करे, गाइड करे। और खुदावंद जो तू हमसे खिदमत लेना चाहता है, जहाँ जहाँ तू हमें भेजना चाहता है, भेज। सब कुछ मांगते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन।